Yes, so one set we are solving today. Daily we will solve one set. Write the name of write the benefits of networking. What all benefits of networking? Now here I have displayed you the answers also. The benefits of networking are file sharing, hardware sharing, application sharing, user communication, access to remote database. So these are all the benefits or advantages of networking. Now next is write any two uses of internet. Internet you all are using. Write the benefits of networking. Yes. Now internet all are using. So internet means for communication, for information sharing. Then we are attending the class using internet. We are sharing our databases. Now what happens that some task is done by the server, like all the rates, all the government rates, all the tasks in server it is placed, and we all clients are accessing it, like the question paper or the CBSE rules and regulations. If we don't have internet, then the clients or we cannot access the sample papers of internet, etc. So two uses of internet are: internet is used for communication and information sharing. Business use the internet to provide access to complex databases. Now, in the question paper, networking is little bit theoretical and MySQL is completely scoring subject. Like afterwards, you will see the table will be given and the select queries will be asked. So in that you can get full marks. Only internet or networking, this you have to just go through, understand it in your own words you can write, because this will be theoretical. So you have to write the answers. Yes. Now next is, what do you understand by the term database? Whichever is based on data, that is huge bulk of data can be stored in it. Or what is a DBMS, database management system? The system which manages huge bulk of data, that is called DBMS. Expand and explain in short. So DBMS will be database management system, full form. So for full form also you will get marks, as well as for explanation also. Now let us see. A database is a huge collection of data accumulating in a particular system. It comprises of historical data, operational and transactional data. The database grows every day with the transactions dealing with it. A database has the following properties. It is a collection of data elements representing real world information. It is logical, coherent and internally consistent. Now this is given in books language. You can understand and you can explain or write in your own language also. Clear? Now next question was expand DBMS and explain in short. So DBMS is database management system. A database management system is a software system that enables user to define, create and maintain the database and provides controlled access to this database. The primary goal of DBMS is to provide a way to store and retrieve database information that is both convenient and efficient. Data in a database can be added, deleted, changed, sorted, searched, all using a DBMS. Huge bulk of data can be stored. You just try to understand the concept. In your own words, you can write your answers. Only the full form you should know. DBMS is Database Management System. Next question is from SQL. Differentiate between alter and update commands. Alter you all know, related with table or table structure or the columns, and update is related with the tuples or rows or records. So this is a DDL command. Alter, update, already 4 differences you have written in your copy. So alter is a DDL command, update is a DML command. So differences already I have shared with you all the differences, and you will write in this format only all the differences. So just I am sharing Excel. Now here you can see the difference. Alter is a DDL command, update is a DML command. Alter is related with columns, update with rows. In alter we can add, modify and drop a column. Using update we can modify the datas or the rows or datas of a tuple or records. Where is not used in alter. DDL command में where clause use नहीं होता है. Where clause can be used.
सिंटैक्स इसका कैसे लिखते हैं, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज। इवन प्राइमरी की ऐड करने के लिए क्वेश्चन आता है कि एक टेबल क्रिएट करते समय वो कंस्ट्रेंट प्राइमरी की डालना, सपोज एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करते समय वो प्राइमरी की रोल नंबर में डालना भूल गया है तो उसको हेल्प करो। तो कैसे लिखते हैं, टेबल का नाम अगर स्टूडेंट है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड प्राइमरी की ब्रैकेट में रोल नंबर, तो वो कंस्ट्रेंट ऐड हो जाता है। ठीक है, अब इसके ये कमांड्स हैं, इसमें ऐड, मॉडिफाई और ड्रॉप के कमांड्स हैं। अपडेट से हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं मार्क्स को, चेंज कर सकते हैं कोई भी मार्क्स को या नेम को, कोई भी डेटा को हम चेंज भी कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है कि जिसका नाम ये है, उसके मार्क्स में 5 मार्क्स इंक्रीज करना है, तो अपडेट स्टूडेंट, टेबल का नाम, सेट मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स प्लस 5 वेयर नेम इक्वल्स टू वॉट एवर नेम विल बी गिवन टू यू। ठीक है, अगर बोला जाएगा कि मार्क्स को चेंज करके 9 कर देना है तो अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल्स टू 9, खाली इंक्रीज और डिक्रीज में ही +5 -5 यूज़ होगा। बाकी ये हमारे डिफरेंसेस हैं ऑल्टर और अपडेट के, तो ऐसे ही डिफरेंसेस पूछे जाएंगे। हाउ इज कैर डेटा टाइप डिफरेंट फ्रॉम वेर कैर डेटा टाइप, दिस ऑल्सो यू हैव डन। कैर में फिक्स लेंथ होता है, वेर नाम से ही समझ में आ रहा है, वेर कैर का मतलब, वेर मतलब वेरिएबल लेंथ होता है, कैर में जितना होता है टेक्स्ट उसके बाद वो फिल्स विथ स्पेस, वेर कैर में डज नॉट फिल्स विथ स्पेस। फिल्स विथ स्पेस सो इट टेक्स more memory, कैर विल टेक more memory, वेर कैर विल टेक लेस मेमोरी। एग्जाम्पल लिख दो कि अगर हमने सपोज नेम में कैर करके 20 लिखा है और नाम छोटा सा ईरा नाम है 3 लेटर का, तो कैर क्या करेगा, बाकी 17 वो फिल्स विथ स्पेस, इट विल फिल विथ स्पेस। और वेर कैर क्या करेगा, खाली ईरा ही स्टोर करेगा, तो खाली कम बाइट्स, कम मेमोरी लगता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंसेस ऑलरेडी गिवन। DDL DML है, स्ट्रक्चर से मॉडिफाइज डेटा, कॉलम्स कैन बी एडेड, मॉडिफाइड, डिलीट, डेटा कैन बी चेंज्ड, अपडेटेड विद वैल्यूज एक्सप्रेशन। ये ऑल्टर अपडेट का है। कैर वेर का फिक्स लेंथ, वेरिएबल लेंथ, वेस्टेज ऑफ मेमोरी, memory usage only as per data size, less useful, better data type. So these are given as answers. Now next question is, which data will get added in table company by following code? Now this is a connectivity code. Now here you can see that import connector connecting. Now user database is connect, क्रिएट डेटाबेस में कनेक्ट नाम का डेटाबेस है। इंसर्ट इनटू कंपनी दिस वैल्यूज दिस, एंड वैल्यू हियर इज ABCDBA एंड 35,000। ये इसका वैल्यू जो इंसर्ट हो रहा है। तो इसमें विच डेटा विल गेट एडेड इन टेबल, कौन सा रिकॉर्ड ऐड हो रहा है, ये रिकॉर्ड ऐड हो रहा है, तो इसको लिखना है जो डेटा ऐड हो रहा है इंसर्ट इनटू। तो ABCDBA एंड 35,000 ये आंसर में आएगा। ठीक है, सो दिस कनेक्टिविटी ऑल्सो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, सो यू शुड नो। इंपोर्ट करके हम पहले MySQL डॉट कनेक्टर करते हैं MySQL और पाइथन को कनेक्ट करने के लिए, उसके बाद डॉट कनेक्ट से हम उसको कनेक्ट करते हैं कर्सर प्लेस करने के लिए, और एग्जीक्यूट करके हम कोई भी कमांड को। तो यहाँ पे SQL में इंसर्ट इनटू कमांड है और वैल में ये वैल्यूज है, तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू हो रहा है। उसके बाद कमिट करना कंपलसरी होता है, कोई भी चेंजेस के बाद अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, इसके बाद कमिट लिखना ज़रूरी होता है, और नहीं तो वो उस अपडेट को या उस इंसर्ट को नहीं दिखाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बॉड रेट, बॉड फ्रीक्वेंसी, ये ऑलरेडी फिजिक्स में भी पढ़े हो। तो यहाँ पे baud rate is a measure of the number of symbols, signals transferred or line changes every second. It may represent more than 1 byte. baud इसका फ्रीक्वेंसी का जो बैंडविड्थ का यूनिट होता है baud का मतलब है कि एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, हर्ट्स होता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट और baud होता है बैंडविड्थ का यूनिट। तो baud रेट मतलब कि वो पर इसमें कितने सिग्नल्स को भेज रहा है, नंबर ऑफ सिंबल्स, सिग्नल्स कितने ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच कैन बी एक्सेस, जैसे हर
चैनल का अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, बैंडविड्थ होता है। तो उसी टीवी में जब हम लोग कलर्स टीवी देखना चाहते हैं तब हम लोग उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज में सेट करते हैं, उस बैंडविड्थ को एक्सेस करते हैं। और जब हम दूसरे चैनल को देखना चाहते हैं तो हम उस बैंडविड्थ को एक्सेस करते हैं। तो बैंडविड्थ इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी का तो हर्ट्स होता है, बैंडविड्थ का बॉड होता है। तो यहाँ पे बॉड रेट के बारे में पूछा गया है, मतलब कितने सिग्नल्स हम एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, और अ कंपनी वांट्स टू फॉर्म अ नेटवर्क on their 5 computers to a server within the company premises, represent star and ring topology diagrammatically for this network। डायग्राम बनाना है, 5 कंप्यूटर्स हैं, तो 5 कंप्यूटर्स में हम बीच में सर्वर रखेंगे या स्विच रखेंगे या हब रखेंगे, और 5 कंप्यूटर्स को स्टार फॉर्म में कनेक्ट कर सकते हैं। जब रिंग में कनेक्ट करना होता है या सर्कुलर में कनेक्ट करना होता है तो हम यहाँ पे 5 कंप्यूटर्स को रिंग फॉर्म में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट एक बॉक्स बना के जब कॉपी में ड्रॉ करोगे तो एक बॉक्स बना के नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 5, बीच में सर्वर या स्विच डाल दो, और यहाँ पे रिंग में सारे एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट, इसमें अलग अलग वायर से कनेक्ट होगा, एक वायर इधर होगा, एक वायर इधर होगा, ये मिसिंग है, इसको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी का डायग्राम बनाने बोले। नेक्स्ट, TrineTech Corporation is a professional consultancy company. The company is planning to set up their new offices in India with its hub at Hyderabad. As a network advisor, you have to understand their requirement and suggest them the best available solutions. Their queries are mentioned as 1 to 5 below. Physical locations of the blocks of TTC, ये कंपनी का नाम है, TrineTech कंपनी, TrineTech कॉरपोरेशन। 3 ब्लॉक है इसके, ह्यूमन रिसोर्स ब्लॉक, फाइनेंस ब्लॉक, कॉन्फ्रेंस ब्लॉक। ह्यूमन रिसोर्स ब्लॉक जो है ये डिस्टेंस दिया हुआ है 2 ब्लॉक के बीच में, कॉन्फ्रेंस और एचआर और फाइनेंस। तो जो कम डिस्टेंस वाले हैं उसको हम लेंगे, और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फाइनेंस में सबसे ज़्यादा है। तो अगर सर्वर पूछा जाएगा कि सर्वर को कहाँ इंस्टॉल करना है, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर होता है वहाँ पे, तो इसका आंसर फाइनेंस होगा अगर पूछेंगे कि सर्वर कहाँ पे इंस्टॉल करना है। अब हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है। Which will be the most appropriate block where TTC should plan to install their server? सर्वर कहाँ प्लेस करते हैं? जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होता है। तो यहाँ पे आंसर में हम फाइनेंस लिखेंगे, बिकॉज फाइनेंस का ब्लॉक contains the maximum number of computers. Next, draw a block-to-block cable layout to connect all the buildings in the most appropriate manner for efficient communication. Efficient communication के लिए हम यहाँ पे बस और स्टार दोनों लिख सकते हैं। बस में तीनों को हम डिस्टेंस के हिसाब से कनेक्ट करेंगे। डिस्टेंस जो है ये है, हाँ, 2 के बीच में ह्यूमन रिसोर्स और कॉन्फ्रेंस के बीच में ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, फाइनेंस को एचआर से और बीच में फाइनेंस रख के कॉन्फ्रेंस से, तो ये 40 और 80 में हो जाएगा हमारा काम, हमको रिपीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर रिपीटर लगाने बोलेंगे तब हम एचआर और कॉन्फ्रेंस को अगर क्यों कनेक्ट करें, जब हमारा काम हो जा रहा है तो हम फाइनेंस को बीच में रख के एचआर को इस साइड 40 मीटर वायर से जुड़ जाएगा और कॉन्फ्रेंस को इस साइड 80 मीटर वायर से जुड़ जाएगा। सेकेंड मेथड जिसमें सर्वर ज़्यादा रहता है, स्टार टोपोलॉजी में, पहला वाला बस था। स्टार टोपोलॉजी में जिसमें कंप्यूटर ज़्यादा रहता है उसको हम बीच में रखते हैं और बाकी को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो उसमें भी फाइनेंस में ही कंप्यूटर ज़्यादा है, तो इसका बेस्ट लेआउट जो एक ही है दोनों में ही, बस के लिए भी फाइनेंस बीच में रहेगा और स्टार के लिए भी फाइनेंस बीच में रहेगा। ठीक है, तो इसका डायग्राम ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, फाइनेंस ब्लॉक को बीच में रख के एचआर और कॉन्फ्रेंस को ऐड करना पड़ेगा। इसमें लिखना पड़ेगा सिंस फाइनेंस ब्लॉक कंटेन्स द maximum number of computers. Second is it is taking the above cable layout is taking the minimum cable length. ठीक है, दोनों को मिला के 80 और 40 मिला के 120 meters minimum length लग रहा है। Yes, next question. What will be the best possible connectivity out of the following you will suggest to connect the new setup of offices in Bangalore with its London-based office? ऑब्वियसली सैटेलाइट यूज़ करेंगे, लंदन को बैंगलोर से अगर जोड़ना है तो ये तो सबसे ईजीएस्ट था, इसमें ऑप्शन भी अगर नहीं भी दिया रहता तो भी हम सैटेलाइट से बैंगलोर को लंदन से जोड़ने के लिए हम सैटेलाइट लिखेंगे आंसर में।
ठीक है, हम तार से तो भी जोड़ नहीं सकते बैंगलोर को लंदन से, तो सैटेलाइट यूज़ होगा। Which of the following device will be suggested by you to connect each computer in each of the buildings? सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हमेशा स्विच यूज़ होता है। कंप्यूटर लैब में भी सारे कंप्यूटर्स स्विच से जुड़े हुए हैं। हाँ, इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए हम मॉडेम यूज़ करते थे। इसमें पूछा क्या गया था कि एक बिल्डिंग में सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने, तो आंसर क्या होगा? स्विच होगा। नेक्स्ट, company is planning to connect its offices in Hyderabad, which is less than 1 kilometer. What type of network will be formed? Offices में normally हम लोग LAN यूज़ करते हैं 1 किलोमीटर। at home you are using PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्किंग। अगर यहाँ पे लिखा रहता कि उसी ऑफिस में एक प्रिंटर है और पर्सनली हम अपना काम करना मीन्स ऑफिस का काम करना चाहते हैं, तो फिर पैन होगा। नॉर्मली होम्स में पैन यूज़ होता है। हाँ, ऑफिस जहाँ पे जैसे स्कूल या ऑफिस में जहाँ पे 1 किलोमीटर के अंदर रेंज है, तो वहाँ पे लैन होगा। अगर सिटी लिखा रहता है कि सिटी के सारे कंप्यूटर्स को जोड़ने हैं या, तो उसमें हम लोग मैन लिखते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग। और अगर बोला जाता कंट्रीज़ को जोड़ना है या फिर डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम लोग वाइड एरिया नेटवर्किंग वैन लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Granuda consultants are setting up a secure network for their office campus at Faridabad for their day-to-day office and web-based activities. They are planning to have connectivity between 3 buildings and the head office situated in Kolkata. Answer the questions after going through the building positions in the campus and other details which are given below. तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम लेंगे, और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स लिखा हुआ है। अगर सर्वर पूछा जाएगा तो 150 जहाँ पे है बिल्डिंग जमुना, वहाँ पे हम सर्वर को प्लेस करेंगे। क्वेश्चंस देख लेते हैं। सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस ब्लॉक टू हाउस द सर्वर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्वेश्चन एक रहता ही है, सर्वर कहाँ पे प्लेस करना है। ऑल्सो गिव अ रीजन टू जस्टिफाई योर सजेस्टेड लोकेशन। तो आंसर में क्या होगा? बिल्डिंग जमुना, बिकॉज दिस बिल्डिंग contains the maximum number of computers. Next, suggest a cable layout of connections between the building inside the campus. कैंपस के अंदर जो है हम इससे जोड़ेंगे, तो रवि बिल्डिंग विथ गंगा बिल्डिंग 50 मीटर्स है, और उसके बाद गंगा टू जमुना जो है 65 है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। 50 और 65 में हमारा केबल लेंथ 115 लग रहा है। ठीक है, और सेकेंड मेथड जो स्टार टोपोलॉजी से अगर जोड़ना है, तो जमुना को बीच में रख के बाकी रवि और गंगा को जोड़ा जा रहा है। इस केस में जब हम इससे जोड़ रहे हैं तो गंगा बीच में है, क्योंकि गंगा से रवि का डिस्टेंस और जमुना का डिस्टेंस ये शॉर्टेस्ट है। तो इसमें दोनों ऑप्शन लिख सकते हैं कि बस टोपोलॉजी में वी विल कनेक्ट रवि बिल्डिंग विद गंगा बिल्डिंग एंड गंगा बिल्डिंग विद जमुना बिल्डिंग शॉर्टेस्ट केबल लेंथ के हिसाब से, और स्टार टोपोलॉजी में हम बिल्डिंग जमुना को बीच में रख के 150। लेकिन इसमें क्या होगा, 150 रखने से जमुना से रवि 120 मीटर है, तो यहाँ पे रिपीटर लगेगा। जहाँ पे भी 100 मीटर से ज़्यादा होता है वहाँ पे रिपीटर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये तो केबल लेआउट हो गया, इन्होंने बस के हिसाब से मिनिमम केबल लेंथ के हिसाब से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विद जस्टिफिकेशन। कहाँ स्विच लगाओगे, कहाँ रिपीटर लगाओगे? स्विच हर बिल्डिंग में लगेगा, क्योंकि हर बिल्डिंग में एक से ज़्यादा कंप्यूटर है, उनको आपस में जोड़ने के लिए स्विच यूज़ होता है। रिपीटर जहाँ पे डिस्टेंस 100 मीटर से ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि बिल्डिंग रवि और बिल्डिंग जमुना के बीच में 100 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस है, सो अगर उसको कनेक्ट किया जाएगा तो वहाँ पे रिपीटर लगाना पड़ेगा, स्टार टोपोलॉजी में लगाना पड़ेगा। बस में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस में हम उसको ले ही नहीं रहे। Next question, the organization is planning to provide a high-speed link with its head office situated in Kolkata using a wired connection. Which of the following cable will be most suitable for this job? Wired जब भी होता है long distance में fiber optical fiber cable use होता है for wired connection. तो best one will be long distance के लिए optical fiber. Why? Because here light is the fastest means of communication और डेटा ट्रांसफ़र रेट बहुत हाई रहता है। उसके एडवांटेजेस सारे उसमें लिख सकते हैं कि उसमें नॉइज़ कम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट,
Consultancy is planning to connect its office in Faridabad, which is more than 100 km from head office. Which type of network will be formed? Already you have seen जहाँ पे 100 किलोमीटर के लगभग है वहाँ पे connect its office in Faridabad, which is more than 100 मीटर्स में हम लोग 100 मीटर्स से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग नॉर्मली हम वैन में जाते हैं। इसमें सेम सिटी है इसीलिए इन्होंने मैन लिखा है, ठीक है। सेम सिटी में अगर 10 किलोमीटर्स तक है तो यहाँ पे हम मैन यूज़ कर सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग। और दूसरे सिटीज़ को अगर कनेक्ट करना रहता लॉन्ग डिस्टेंस तो वहाँ पे हम यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्किंग वैन लिखते हैं। Explain the role of database management system in maintaining huge volumes of data of different domains. Explain your views using an example. Theory question है, database management के सारे advantages, उसमें no data redundancy होता है, no inconsistency, sharing of data, so all the advantages you can write. And DBMS जो होता है वो huge volumes of data को warehouse में store कर सकता है और mining से information provide कर सकता है। अब एग्जाम्पल देना है, जैसे स्कूल सीबीएसई का डेटा स्टोर्ड है, अब इसमें हम लोग MySQL यूज़ करके, इंग्रेस यूज़ करके, MS एक्सेस यूज़ करके, ओरेकल यूज़ करके हम कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। अ टेबल स्पोर्ट्स एग्जिस्ट विथ 3 कॉलम एंड 5 रोज। व्हाट इज इज डिग्री एंड कार्डिनलिटी? डिग्री क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, कार्डिनलिटी टोटल नंबर ऑफ रोज। तो डिग्री में 3 हो जाएगा, कार्डिनलिटी में 5 हो जाएगा। 2 rows are added to the column and 1 column deleted. What will be the degree and cardinality now? Cardinality में पहले 5 था, 2 ऐड हो गया 7 हो गया। डिग्री में पहले 3 था, 1 डिलीट हो गया 2 हो गया। तो डिग्री अब 2 हो जाएगा और कार्डिनलिटी जो है 7 हो जाएगा। Yes, you can see here पहले 3 था, 5, cardinality 3 and 5, degree is 3, cardinality is 5. So after the operation, now degree is 2, cardinality is 7. Now select queries. As you all know that this exam maximum marks will be from MySQL. So MySQL, and this is very easy to score also because only 10 marks I think directly select, like display ये दिख रहा है, सब में 2 display लिखा है, सब में select query रहेगा। कैसे लिखते हैं? सिलेक्ट के बाद जो जो कॉलम नेम लिखा जाता है उसको कॉमा करके लिखते हैं। अगर डिटेल्स पूरा लिखाना है, पूरे स्टूडेंट डिटेल या एक्सेसरीज डिटेल, तो स्टार लिखते हैं। फ्रॉम टेबल का नाम जो यहाँ पे ऊपर दिया है ये टेबल का नाम आ जाता है। और अगर कोई कंडीशन है तो वेयर लगेगा, इसमें असेंडिंग ऑर्डर है तो ऑर्डर बाय लगेगा। यह कंडीशन दिया है नेहरू प्लेस होना चाहिए तो वेयर लगेगा। जहाँ पे ईच वर्ड यूज़ होता है यहाँ पे ग्रुप बाय यूज़ होता है, ठीक है। तो ये MySQL को एक एक शुरू से लेके कैसे सिलेक्ट क्वेरी लिखा जाता है, कैसे इंसर्ट इनटू, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स इसी से आएगा तो इसमें थोड़ा सा 1-2-3 टाइम देके इसको अच्छे से समझ लो। उसके बाद फिर कम्युनिकेशन से आएगा तो कम्युनिकेशन नेटवर्किंग जो चैप्टर है, नेटवर्किंग चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो। फिर स्टैक के 5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे तो स्टैक को भी प्रोग्रामिंग, स्टैक में भी ज़्यादा नहीं है, पुश पॉप 1 दिन में हो जाएगा, स्टैक 1 दिन भी नहीं लगेगा, समझ लोगे तो 1 घंटे में हो जाएगा। तो स्टैक को लास्ट में या भी स्टैक को कर लो, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देके इसको पूरे को अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट, डिस्प्ले नेम एंड प्राइस ऑफ ऑल द एक्सेसरीज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्राइस। सिलेक्ट नेम कॉमा प्राइस फ्रॉम, टेबल का नाम है एक्सेसरीज और प्राइस के असेंडिंग ऑर्डर मतलब ऑर्डर बाय प्राइस। ASC नहीं भी लिखने से हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर देख सकते हो, सिलेक्ट नेम कॉमा प्राइस फ्रॉम एक्सेसरीज ऑर्डर बाय प्राइस सेमीकोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले ID एंड S नेम ऑफ ऑल शॉप लोकेटेड इन नेहरू पैलेस। सिलेक्ट ID कॉमा S नेम, ID यहाँ पे S नेम ऊपर दिया है, S नेम फ्रॉम शॉप वेयर एरिया इक्वल्स टू नेहरू पैलेस। ये टेबल देख के लिखना पड़ेगा। एरिया में नेहरू पैलेस है, नेहरू पैलेस के ऊपर सिंगल कोट्स आएगा फिर सेमीकोलन। आंसर यहाँ पे देख लेते हैं, सिलेक्ट ID कॉमा S नेम फ्रॉम शॉप वेयर एरिया इक्वल्स टू नेहरू पैलेस। क्लियर?
sorry, display minimum and maximum price of each name of accessories. each word जहाँ यूज होता है वहाँ ग्रुप बाई होता है. ये ग्रुप बाई के जिस दिन हम लोग किए थे each वाइज कहाँ कहाँ ग्रुप बाई यूज होता है ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं. तो सिलेक्ट मिन, अब इसमें क्या दिखाना है, प्राइस दिखाना है. तो पेन प्राइस कॉमा मैक्स प्राइस फ्रॉम एक्सेसरीज सेमीकोलन. हाँ, विथ कॉलम नेम अगर करना है एलियास नेम देख के तो कॉलम नेम को चेंज करने, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट मेन प्राइस, कॉलम का नाम हमको अभी मिनिमम प्राइस करके दिखाना है, मैक्स प्राइस अभी हमको मैक्सिमम प्राइस करके दिखाना है, नेम भी दिखाना चाहते हैं फ्रॉम एक्सेसरी सेमीकोलन. ग्रुप बाय, इसमें ईच नेम है तो किसका मिनिमम प्राइस मैक्सिमम प्राइस वो हमने यहाँ नेम करके लिख लिया है. लास्ट में ग्रुप बाय नेम सेमीकोलन हो जाएगा क्योंकि ईच दिया हुआ ईच नेम. नेक्स्ट, टू डिस्प्ले नेम प्राइस ऑफ ऑल एक्सेसरीज एंड द रेस्पेक्टिव एस नेम वेयर दे आर अवेलेबल. अवेलेबल का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे वो हो. अब रेस्पेक्टिव एस नेम दूसरी टेबल में है, नेम प्राइस एक्सेसरीज का इस टेबल में है. ठीक है, नेम प्राइस ऑफ ऑल एक्सेसरीज इस टेबल से है और रेस्पेक्टिव एस नेम जो है शॉप नेम दूसरे टेबल में. तो ये जॉइन का क्वेरी है. जॉइन में हम कैसे जॉइन करते हैं, दोनों में कॉमन कॉलम कौन सा है. तो यहाँ पे हमको कॉमन कॉलम में डेटा गलती से इन्होंने S0001 S01 होना चाहिए था, डेटा इन्होंने थोड़ा सा गलत डाल दिया है. ठीक है, अभी हम लोग डेटा को नहीं देख रहे हैं. तो अभी हम ज्वाइन कैसे करेंगे, shop.id को हम accessories.id से ज्वाइन करेंगे. डेटा सेम होना चाहिए था. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सिलेक्ट नेम कॉमा प्राइस, जो कॉमन रहता है उसको टेबल नेम, जैसे आईडी यहाँ पे कॉमन है तो टेबल नेम डॉट आईडी करके लिखना पड़ता है. बाकी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. तो सिलेक्ट नेम कॉमा प्राइस कॉमा एस नेम. अब दो टेबल के क्वेरीज में फ्रॉम करके दोनों टेबल का नाम लिखना पड़ता है. फ्रॉम एक्सेसरीज कॉमा शॉप वेयर एक्सेसरीज डॉट आई डी इक्वल्स टू शॉप डॉट आई डी. अब इसमें हाँ एलियास नेम भी यूज कर सकते हैं. सपोज हम यहाँ पे एक्सेसरीज ए और शॉप एस लिख रहे हैं तो वेयर ए डॉट आई डी इक्वल्स टू एस डॉट आई डी सेमीकोलन, एलियास नेम से भी हम लिख सकते हैं. ठीक है, बट दिस क्वेरी अनेबल टू शो द रिजल्ट बिकॉज ए आई डी एंड एस आई डी आर नॉट आइडेंटिकल. देखो यहाँ लिखा हुआ है कि दोनों आइडेंटिकल नहीं है, इसीलिए वो आउटपुट दिखाते समय इसमें आउटपुट क्योंकि मैच नहीं होगा तो आउटपुट नहीं दिखाया जाएगा, आउटपुट नहीं दिखाएगा. नेक्स्ट, टू डिस्प्ले नेम ऑफ एक्सेसरीज हुज प्राइस इज ग्रेटर देन 1000. तो डायरेक्ट बहुत इजी है. सिलेक्ट नेम फ्रॉम एक्सेसरीज वेयर प्राइस ग्रेटर देन, साइन डालोगे और 1000. जहाँ पे ग्रेटर देन लिखा है वहाँ ग्रेटर देन साइन डाल के ऑपरेटर यूज करना है. 1000 सेमीकोलन, लास्ट में सेमीकोलन डालना है. ठीक है, तो सिलेक्ट क्वेरीज जो होते हैं ये फुल मार्क्स मिल जाता है इजीली. क्लास में सभी का थोड़ा सा बस प्रैक्टिस कर लो तो इसमें फुल मार्क्स आ जाएंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से रहेंगे. सिलेक्ट क्वेरीज का इन, लाइक, बिटवीन, डिस्टिंक्ट. नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग क्लॉज एंड वेयर क्लॉज. ये क्वेश्चन तो आएगा ही क्योंकि ग्रुप बाय हैविंग ये न्यू सिलेबस 12th का सिलेबस है. तो वेयर जो होता है पूरे टेबल के ऊपर होता है, हैविंग ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स के ऊपर होता है. ग्रुप बाय के साथ ही हम हैविंग यूज कर सकते हैं. वेयर में ग्रुप बाय का कोई रोल नहीं है, हम सीधे टेबल के ऊपर डाल सकते हैं. वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कंडीशन. हैविंग क्लॉज is used to filter records from the groups based on the specific condition. Where clause implements in row operation, having clause implements in column operation. Where clause cannot contain aggregate function, having clause can contain aggregate function. एक having करके आता है जिसका count greater than 1 है या greater than 2 है, उन records का display करो. तो वहाँ पे हम लोग सीधे having के साथ count use कर सकते हैं, लेकिन where में हम एग्रीगेट फंक्शन को नहीं यूज कर सकते. मैक्स, मिन, काउंट, सम ये सारे एग्रीगेट फंक्शन है जो हम वेयर में नहीं यूज कर सकते हैं. वेयर क्लॉज कैन बी यूज्ड विद सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट स्टेटमेंट. हैविंग क्लॉज कैन ओनली बी यूज्ड विद सिलेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है,
खाली ग्रुप बाय और ग्रुप बाय सिलेक्ट के साथ ही यूज़ होता है, खाली उसी में हैविंग लग सकता है। वेयर तो हम डिलीट करते समय, सिलेक्ट करते समय, अपडेट करते समय, हर एक जितने भी DML कमांड से इंसर्ट को छोड़ के बाकी सब में हम वेयर यूज़ कर सकते हैं। वेयर क्लॉज इज यूज्ड विथ सिंगल रो फंक्शन लाइक अपर लोअर एक्सेट्रा। हैविंग क्लॉज इज यूज्ड विथ मल्टीपल रो फंक्शन लाइक सम, काउंट एक्सेट्रा। जितने भी सिंगल रो फंक्शंस है उसमें हम वेयर यूज़ कर सकते हैं, और हैविंग में हम खाली मल्टीपल जो 5 एग्रीगेट फंक्शंस है, अभी सिलेबस में 5 ही है, मैक्स, मिन, काउंट, AVG और सम। तो ये हो गया हमारा sample paper, and the other sample papers will be shared very soon. This one I am sharing with you, and the second paper set I will solve it in the next class. Anybody